Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free MCQ session which you are getting on this free YouTube platform that is Triple S. जैसा कि पहले ही हम आपके साथ दो MCQs सीरीज़ आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में एक और सेट आपके लिए लेके आए हैं हम बेस्ड ऑन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। आई होप आप अटेंटिव रहे बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द सिलेबस जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो बिगिनिंग टुडेज session with question number first here is which among the following rivers in India has highest salinity? Option A Wular Lake, option B Sambar Lake, option C Vembanad Lake and option D Chilika Lake. आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन बी, दैट इज सांबर लेक। द सांबर लेक इज हाईएस्ट सैलाइन वाटर बॉडी इन इंडिया, जो कि है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. Question number 2 here is consider the following statements. Statement first, most of the east flowing rivers drain into Bay of Bengal. Statement second, most of the west flowing rivers drain into Indian Ocean. Statement third, most of the west flowing rivers drain into Arabian Sea. Which of the above given statements is are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only and option D 1, 2 and 3. आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड 3, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट हियर। दीज ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर हम बात करें, दे ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल। एंड अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें लाइक नर्मदा, तापी एट्सट्रा, अगर हम इन रिवर्स की बात करें, दे फ्लो इन अरेबियन सी, नॉट इन इंडियन ओशन। सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट हियर, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट। Moving on to question number 3. Question number 3 here is most of the peninsular rivers flow from option A east to west, option B west to east, option C some flow to east and some to west. I hope आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्रॉम west to east. These peninsular rivers flow from west to east and इसमें दो एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज नर्मदा रिवर एंड सेकंड इज तापी। Except these two rivers, all the peninsular rivers flow from west to east. Moving on to next question, that is question number 4. Question number 4 here is which of the following is not a tributary of river Ganga? Option A Gomati, option B Gandak, option C Chambal and option D Kosi. आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी, दैट इज चंबल। This Chambal is not among the tributaries of river Ganga. Rest Gomati, Gandak, Kosi, these all are the tributaries of this river Ganga. And this river Chambal, I think this is a tributary of river Brahmaputra. Yes, river Brahmaputra. Moving on to question number 5. Question number 5 here is which of the following is the largest river of peninsular India? Option A Krishna, option B Kaveri river, option C
नर्मदा रिवर एंड ऑप्शन डी गोदावरी रिवर। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन डी, दैट इज गोदावरी। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, दिस गोदावरी इज लार्जेस्ट रिवर। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, लार्जेस्ट रिवर इज गोदावरी रिवर। इसको एक और नाम से कहा जाता है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण गंगा, दैट इज गंगा ऑफ साउथ, राइट। Moving on to question number 6. Question number 6 here is, which of the following river does not originate in Indian territory? Option A, River Ganga. Option B, River Satluj. Option C, Mahanadi. And option D, River Yamuna. I hope आप सभी ने correct answer, correct option टिक कर लिया होगा। The correct answer to your question number 6 is option B, that is Satluj. अगर हम सतलुज रिवर की बात करें, दिस ऑरिजिनेट्स इन जो रक्षस्थल है, रक्षस्थल लेक इज द ऑरिजिन ऑफ रिवर सतलुज एंड दिस रक्षस्थल लेक इज इन तिब्बत। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेबल रिवर? ऑप्शन ए, गोदावरी रिवर. ऑप्शन बी, चिनाब रिवर. ऑप्शन सी, नर्मदा रिवर. एंड ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र रिवर। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन बी, दैट इज रिवर चिनाब. दिस इज नॉट ए नेविगेबल रिवर बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसका हमने पिछले MCQ सीरीज जो हमने डिस्कस की थी, इसका जिक्र हमने किया था इंडस वाटर ट्रीटी का। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग दिस चिनाब रिवर जो है, द वाटर ऑफ दिस चिनाब रिवर वाज एलोकेटेड टू पाकिस्तान एंड इसे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पोल्यूट नहीं कर सकते इस चिनाब के पानी को। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट नेविगेबल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज, द फर्टाइल एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड? ऑप्शन ए, ड्रेनेज बेसिन. ऑप्शन बी, वाटरशेड. ऑप्शन सी, डोआब. एंड ऑप्शन डी, टेरेन। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। The correct answer to your question number 8 is option D, C, that is Doab. Moving on to question number 9. Question number 9 here is, which of the following is called Lake District of India? Option A, Shimla. Option B, Nainital. Option C, Sikkim. And option D, Srinagar. I hope आप सभी ने correct answer, correct option टिक कर लिया होगा। The correct answer to your question number 9 is option B, that is Nainital. This Nainital is called as Lake District of India because यहाँ पे बहुत सारे lakes हैं. That is why it is called as Lake District of India, like Bhimtal, right? Moving on to question number 10. Question number 10 here is, the study of lakes is called as? Option A, topology. Option B, hydrology. Option C, limnology. And option D, potomology. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन सी, दैट इज limnology. This limnology is the term used for the study of lakes. Moving on to next question. Question number 11 here is, which river basin is called Ruhr of India? Option A, Hooghly. Option B, Godavari. Option C, Damodar. And option D, Kaveri. The correct answer to your question number 11 is
Option C, that is this Damodar. This Damodar Valley is called Ruhr of India because यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है. मिनरल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड स्पेशली यहाँ पे कोल काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है विच इज़ यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्रीज. Moving on to your last question, question number 12 here is which of the following pairs of seaports and states is not correctly matched? Option A, Kandla, Gujarat. Option B, Paradip and the state is Orissa. Option C, Kulon and the state is Kerala. Option D, Kakinada and the state is given Maharashtra. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा. यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आपसे नॉट करेक्टली मैच जो है वही आपका आंसर है. एंड द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन डी, दैट इज Kakinada. Kakinada, this Kakinada port is not in the state of Maharashtra, but this is in the state of Andhra Pradesh. In the state of Andhra Pradesh, this Kakinada port is situated. I hope that कि आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा बिकॉज अगर हम रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया इस पोर्शन की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. आप फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में. थैंक्स, हैव ए गुड डे.